Last class we discussed about different endocrine glands and their hormones. Today we will discuss about every gland and its hormones which are in your syllabus. Okay, after completing that we again form a table in which we will put all the hormones, their functions and diseases which are produced due to their hyposecretion or their hypersecretion. But right now we will discuss about everything which is in your syllabus only. Okay, listen, जो फर्स्ट ग्लैंड हमको स्टडी करनी है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. क्या कहलाती है? दिस ग्लैंड एक्चुअली लोकेटेड इन आवर ब्रेन. ब्रेन में एक रीजन होता है, एक पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड कनेक्ट होती है. This part is called anterior pituitary. This part is called posterior pituitary. This part is called intermediate lobe. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं. क्यों कहते हैं? ये ग्लैंड हमारे बॉडी की दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, हाइपोथैलेमस से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं. वो हार्मोन्स इस ग्लैंड के निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करती है. इसीलिए हम इसको इस ग्लैंड का भी मास्टर या कंट्रोलर कहते हैं. दैट्स वाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट सुनो. जो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं वो यहीं पर सिंथेसाइज होते हैं, यहीं से सिक्रीट होते हैं. जो हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. ये दोनों हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं. हाइपोथैलेमस में बनने के बाद ये हार्मोन्स आते हैं पोस्टीरियर रीजन में, और जब नीड होती है तो वो यहाँ से सिक्रीट होते हैं. क्लियर दिस थिंग? तो हाइपोथैलेमस also produce some hormones which control the functioning of this gland, and this gland produce hormones which control the functioning of other endocrine glands. Clear this thing? Write down. Heading लिखो pituitary gland. Just write down the heading pituitary gland. Endocrine system में write down the heading pituitary gland. In this write down this gland is located in human brain या in our brain. This gland is located in our brain and attached to hypothalamus and is attached to hypothalamus by the help of a stalk. by the help of a stalk.
called infundibulum, called infundibulum. Stalk is called infundibulum, सेम वर्ड है, सिंगल. Is attached to hypothalamus by the help of stalk called infundibulum. कोई डाउट? Write down next point. This gland secrete many hormones. This gland secrete many hormones which control functioning of other endocrine glands, which control functioning of other endocrine glands. That's why also called master gland. That's why also called master gland. Write down next point. Hypothalamus also release some specific hormones. Hypothalamus also release some specific hormones which control functioning of pituitary gland. That's why functioning of pituitary gland. That's why it is commonly called master of master gland. That's why it is commonly called master of master gland. Now listen. Write this point also, then we will discuss about next point. Oxytocin and vasopressin are released by posterior pituitary. But they are synthesized in hypothalamus. Clear this thing? Now listen. पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स, एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर. एंटीरियर पार्ट से एक हार्मोन निकलता है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन. दिस हार्मोन इज इन अवर सिलेबस. लिसन, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की जो जनरल ग्रोथ होती है, हाइट, ऑर्गन्स का साइज, बोन्स की लेंथ, प्रोटीन, मसल्स, सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन. हाउ दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी? दिस हार्मोन परफॉर्म 3 functions. It help in synthesis of protein. प्रोटीन का फॉर्मेशन
हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा होगा मसल्स उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, बिकॉज मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. इट ऑल्सो इंक्रीज और मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल. हमारे बॉडी में जितना ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी में हमेशा डेवलप होती रहेगी. थर्ड, इट इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन बॉडी. कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, और बोन्स के लिए अगर कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो बोन्स की ग्रोथ भी होती रहेगी. ग्रोथ ऑफ बोन्स, प्रोटीन्स, मसल्स, रिक्वायर्ड एनर्जी, ऑल दीज कंबाइंडली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी. और ये सारे काम कौन कराता है? ग्रोथ हार्मोन. नाउ अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, हाइपोसिक्रीशन, देन इट रिजल्ट इन ड्वार्फिज्म. पर्सन की हाइट कम रह जाती है. जो हम सर्कस में डॉफ देखते हैं ना, देयर बॉडी डू नॉट एबल टू प्रोड्यूस so much amount of growth hormone. जो भी डॉफ आप सर्कस में देखते हो, उनकी हाइट को छोड़कर उनकी बॉडी का हर ऑर्गन, ब्रेन, IQ, एवरीथिंग इज नॉर्मल एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन एक्सेप्ट देयर हाइट. सिर्फ उनका बॉडी पॉस्चर, उनकी हाइट कम होती है, अदरवाइज देयर बॉडी फंक्शनिंग इज नॉर्मल. अंडरस्टूड? अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, हाइपर सिक्रीशन, यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं. अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन चाइल्डहुड स्टेज में है, जब हम ग्रोइंग फेज में हैं, स्पेशली व्हेन वी मूव फ्रॉम 9th to 10th और 10th to 11th class, at that time if the hormones level increases much faster, then it result in a condition that is called gigantism. You can pronunciate it as a gigantism, gigantism, it's up to you. Okay? Now listen. If the growth hormone level increases during adulthood, एक बार हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो जाए, उसके बाद अगर किसी वजह से आइदर ड्यू टू कैंसर और ड्यू टू एनी सप्लीमेंट, किसी भी वजह से इफ द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस इन आवर बॉडी, देन इट रिजल्ट इन अ डिसीज और कंडीशन दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगाली. व्हाट इट कॉल्ड? नाउ हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन जिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली? लिसन, जैसे जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल इस एज में बढ़ता है विच लीड्स टू जाइगेंटिज्म, तो उस समय हमारी हाइट बढ़ जाती है, बोन्स, मसल्स, सबका अमाउंट बढ़ जाता है, बट हमारी बॉडी का जो अपीयरेंस रहता है, आउटलुक रहता है, वो नॉर्मल होता है. क्लियर? बट जब हम बात करते हैं एक्रोमेगाली की, देखो एडल्ट फेज में जैसे ये हमारी दो बोन्स हैं, अब ये दोनों बोन्स आसपास प्रेजेंट हैं, ग्रोथ हो चुकी है कंप्लीट. अब अगर ग्रोथ फिर से होगी तो या तो ये बोन्स ऐसे मुड़ जाएगी या ऐसे मुड़ जाएगी. कुल मिलाकर बोन्स में डिफॉर्मिटी हो जाती है. क्या हो जाती है? कुछ लोगों में फिंगर्स पर इफेक्ट पड़ता है, फिंगर्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं. कुछ के पैरों पर इफेक्ट पड़ता है, पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं. खली को देखा होगा आपने, कभी वो स्ट्रेट नहीं चल सकता,
उसका रीज़न यही है। कुछ लोगों की जो बैकबोन है वो ओवरग्रो कर जाती है, तो यहाँ पर एक हम्प टाइप का बन जाता है। तो दैट आर द सिम्टम्स ऑफ एक्रोमेगैली। क्लियर? ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, ये नहीं है, बस आपके घर की हाइट छोटी ना हो। जाइगेंटिज्म में हाइट बढ़ेगी, बोन्स बढ़ेंगी, बट दैट विल नॉट बी एबनॉर्मल। इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन हाइट ज्यादा होगी, बट दैट नॉट बी एबनॉर्मल। दिस कंडीशन इज, जितने भी लोग को ज्यादा लंबे होते हैं तो उनको हम इसी कैटेगरी में, हाँ, बट अनटिल अनलेस कि उनके वो जो कैरेक्टर्स हैं हाइट के वो जेनेटिकल ना हो। अंडरस्टूड? दैट इज क्लियर।